Respected sister, our supporting teachers and all my dear viewers, wish you all a very pleasant morning. Today, I, Aishanya Dwivedi, along with my friend Amrita Yadav, is standing before you all to guide you to a series of programs taking place on this auspicious occasion. Now, I would like to call my friend Amrita to introduce you on this special topic. You all must be aware of today's festive season. Today, it's a time to celebrate, a time to commemorate the victory of good over evil, and a time when the world had witnessed the power of God. Indeed, it's Dussehra. We wish you a very happy and healthy Dussehra. And on this special occasion, Class 9th had decided to pay a tribute to the warriors of Corona who are working 24/7 under this pandemic situation. It is very difficult to rise over the consequences of this threatening and straining disease, but always remember, at any cost or in spite of all the terrors, however long and hard the route may be, but the good always triumphs over the bad. So we should come together, fight together, and appreciate the real fighters of Corona. St. Peter's honors and pays a tribute to the frontliners who are risking their lives to save us through a drawing drawn by Pratima Bhaskar, a student of class 9th. अपनी जान न्यौछावर करके हजारों मुस्कानें कमाई हैं। वे शस्त्र वाले योद्धा नहीं, हृदय वाले कहलाए हैं। जब माँ का साया हटा तो मुस्कान लाने का संकल्प जिन्होंने उठाया है, ये योद्धा ही तो हैं जिन्होंने इस राक्षस से दुनिया को बचाया है। ढाल बनकर खड़े हुए, निश्चय को एकाग्र किया, रात दिन एक किए, चेहरे पे मुस्कान दिया। आंखें भर आईं सबके सवाल सुनकर कि आखिर ये त्याग क्यों। जज्बात आया, खुदा ने प्यार बांटने का जिम्मा तो हमें ही दिलाया है। अपने दिल के भाव को बयां करूं तो हमने खुशियां बांटना तो जिंदगी का हिस्सा बनाया है। ये विचार हैं कोरोना योद्धाओं के। हमें उनके इन विचारों की सराहना करना चाहिए तथा उनके इस मानोचित कर्तव्य का प्रोत्साहन करना चाहिए। तो आइए इस दशहरा हम अपना इतिहास भुलाकर कोरोना से लड़कर एक नया इतिहास रचते हैं। आइए हम इस नई जीत का आगाज करते हैं और आने वाली पीढ़ी को दशहरा मनाने की एक नई वजह प्रदान करते हैं। Well, now coming to the topic Dussehra, to know the legend behind the celebration of this splendid and auspicious festival, we have to travel a long ago when an idealistic son, Lord Ram, was born in a renowned city of Ayodhya. According to Hindu scripture, Mata Sita, the wife of Lord Ram, was kidnapped during the course of 14 years of Vanvas. And finally, Lord Ram defeated the overlord of Lanka, and thus this victory over the evil has been celebrated as Dussehra. In the beginning of any auspicious occasion, we need to pray to the Almighty and the Immortal God. And a prayer dance is the best way to communicate directly and expressively with the God. So here comes Cecil with an untrailing and glorious dance performance. So hold your breath and widen your eyes to capture the glimpse of this wonderful dance performance in your minds and hearts.
विनोदिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। I want to ask a question. Have you ever wondered that Ravan still exists in our society? You would be thinking what a fool is saying. But yes, the bruise of dying innocence is the proof that Ravan still exists in our society. It has the characteristics of forcing, torturing, violence, outrage, and it is the main cause in the tears of so many women and girls. Does Dussehra only mean to burn the effigy of Ravan, or does it mean to just worship the women goddess? Does not it mean to pay at least a little respect to women? Praying to the goddess Durga for 9 days and harassing the women around you does not make sense, right? An endless number of women are the victims of physical abuse, rape, or domestic Let's violence. come together on this Dussehra and burn our misdeeds, which have made some of us as Ravan. So here comes the girls of class 9 with their enthusiastic, beautiful, charming, and the most important, moral-giving dance performance. आई मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। मैडम ये एड्रेस कहाँ का है? एड्रेस छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, जाने दो। बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ ने लड़कियों से छेड़छाड़ की। हैदराबाद में भी 2 लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका रेप न कर दे। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई उजियारे कैसे
छैली धूप मैली क्यों है री। तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रेत जल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। क्या रेत जल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आंसुओं की मोती को जज्बातों की माला में पिरो कर रखने वाली एक लड़की हूँ मैं। सपनों में भी उड़ने की चाह को दबाने वाली एक लड़की हूँ मैं। इज्जत की आस में शोर भरी गलियों में भटकने वाली एक लड़की हूँ मैं। दुनिया की मुस्कान के लिए अपनी ज़िंदगी में अंधेरे का साया भर देने वाली एक लड़की हूँ मैं। लेकिन अब एक लड़की अपने हक के लिए लड़ेगी, ताकि जब अपने आप को आईने में देखे तो गर्व से कह सके, एक लड़की हूँ मैं।
एक नन्ही सी जान माँ की कोख में मारी जाती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक बेटा नहीं कहलाती है। इस समय ये महाज्ञानी ये भूल जाते हैं कि घर में खुशियाँ तो केवल एक बेटी ही लाती है। स्वर्ग में जाकर शायद उसकी आत्मा भी खुशी मनाती है। अच्छा वो नहीं जन्मी इस बेरहम दुनिया में, ये सोचकर मुस्कुराती है। एक लड़की मुस्कुराहट का मुखौटा लगाकर अंदर खूब रोती है। पति परमेश्वर की लंबी उम्र के लिए वो अपनी भूख प्यास सब खोती है। वो हर रूप से करती है अपने धर्म का पालन, फिर भी न जाने क्यों हर गाली एक लड़की के लिए ही होती है। सीता माता ने अपने आत्मविश्वास से बनाया था एक तिनके को सहारा। उस तिनके से डरकर धरा रह गया था रावण का अहंकार सारा। इसलिए भारतीय नारी पतिव्रता पत्नी कहलाती है। इतना सहने के बाद वो फिर भी मुस्कुराती है। आज के दिन का महत्व सबको है स्मरण कि प्रभु राम के द्वारा मारा गया था अभिमानी दशानन। पर एक बात जिस पर हम गौर नहीं करते, हम क्यों भूल जाते हैं माता सीता का अपहरण। द्वापर युग में चीरहरण केवल द्रौपदी का ही किया। अपने स्वामी से मिलने के लिए कितना तड़पी माता सिया, पर अंत में वो ये सब भूल जाती है। इतना सहने के बाद वो फिर भी मुस्कुराती है। अगर हर लड़का काम ले अपने भारतीय संस्कारों से, तो कलयुग की हर देवी बच सकेगी आने वाले बलात्कारों से। फिर सबको सुख की प्राप्ति होगी, कोई भी वंचित न रह जाएगा अपने अधिकारों से। एक लड़की अपने आत्मसम्मान से ज्यादा और कुछ नहीं चाहेगी। इतना सहने के बाद वो कब तक मुस्कुराएगी। तो क्यों ना इस दशहरा अपने भीतर के रावण को जलाया जाए, उलझे हुए सभी रिश्तों को एक बार फिर से सुलझाया जाए। सीता माता को तो देनी पड़ी हर बार परीक्षा, तो क्यों ना इस बार सभी को अपना हक और आत्मसम्मान वापस दिलाया जाए और आखिर में हर मुरझी हुई कली को फिर से खिलाया जाए। आशा हो पूर्ण हो आपकी सभी कामनाएं। आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। असत और अन्य से हमें बचाना प्रभु, जब हो अज्ञान का घना अंधेरा, हृदय में ज्ञान जो जलाना प्रभु। सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी। प्यारे बच्चों, यह जीत राम की रावण पर नहीं थी। यह विजय रावण पर राम की नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की, अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की जीत। आज के परिप्रेक्ष्य में जब चौदिशा में अर्थात चारों ओर परिनार का अपमान करने वाले रावण रूपी शख्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में हमें अपने अंदर के सत्य को उजागर करना होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा आदर्श स्थापित करना होगा। चाहे वो पुत्रवत प्रेम हो, वह माता पिता तथा गुरु की आज्ञा का पालन व सम्मान हो, वह भातृत्व प्रेम हो भरत जैसा, या फिर एक पत्नी निष्ठा की भावना हो जैसा राम जी ने। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम सब मिलकर इस दशहरा के पावन पर्व पर यह संकल्प लें, ये स्वयं व अपने बच्चों के भीतर ऐसा संस्कार स्थापित करें या राम जैसा संस्कारवान बना सके, जिससे समाज में फैली बुराई, अन्याय, कुरीत, अत्याचार, दुराचार, परिनार अपमान, कोविड-19 जैसे रावण पर विजय प्राप्त की जा सके। आइए हम सभी मिलकर इस दृढ़ इच्छा के साथ आज यह संकल्प लें।
प्यारे बच्चों, आज के विशेष दिन पर मैं आप सभी को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से दशहरा व विजयदशमी पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। हैप्पी दशहरा। धन्यवाद। Every day, every moment and every second of life teaches an important lesson. So, on this special occasion, let's forget our mistakes but focus on some important So, here are the students of class 9 to remind you of the things over which you can achieve a great victory. बुराई पे अच्छाई की जीत, उदासी पे खुशी की जीत, अंधेरे पे उजाले की जीत, गरीबी पे खुशहाली की जीत, आलस पर मेहनत की जीत, पैमाने पर ईमानदारी की जीत, निरक्षरता पे साक्षरता की जीत, बीमारी पर जातिवादिता पे एकता की जीत, शोषण पर सफाई की जीत, नफरत पर प्यार की जीत। जीत हो अचान की, जीत हो इंसान की, जीत हिंदुस्तान की।